పేరు పేరున నా వాల్ సలాం తెలియజేసుకుంటూ, మన అందరికీ తెలుసు ఎండ ఉంది కాబట్టి మనం ఒక 2 గంటల ముందునే ప్రోగ్రామ్ చాలు చేసుకోవాలి అనుకున్నాం. కానీ అక్కడ సీఎం గారు ప్రోగ్రాం పెట్టారు హైదరాబాద్లో. అదేవిధంగా ఎంపీ షట్కార్ గారు కూడా నాగల్గిద్ద మన నారాయణఖేడ్ దగ్గర ఒక ఊరు ఉంటుంది, అక్కడ వాళ్ళకు అడుగున ప్రజలు మా దగ్గర అంటే మా దగ్గర రావాలా అని అయితే కూడా జలాల్ భాయ్ నేను ఇంత లేట్ అయితే కూడా జహీరాబాద్కి వస్తారన్నారు. మీరందరూ ఒకటే విషయం మీకు మనవి చేస్తున్నా, ఏంటిదంటే మనం మీకు అందరికీ ఇది పోస్టర్ అందజేసాం, పాంప్లెట్ అందజేసాం, కాంగ్రెస్కి ఎందుకు ఓటు వేయాలా అని బాధ్యత రాశాం. మీరు ఒక్కొక్కరు కలిసి అందరికీ చెప్పాలి ఈ మాట. కాబట్టి ఇప్పుడు పెద్దోళ్ళు అందరూ ఇక్కడ ఉంటున్నారు, మాట్లాడతారు. కాస్కర్ మన విజయ్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ మన డ్యాష్ మీద ఉన్నారు. మన అందరికీ మిగతా పశువులాగా పరిచయం ఉంది. ఎందుకు ఇక్కడ ఈరోజు ఈ సమావేశం జరుపుతున్నాం పెద్దోళ్ళు చెప్తారు. కాబట్టి మన చిరంజీవి గారు ఏఐటీసీ జిల్లా కామ్రేడ్ కూడా వేదిక పైకి రావాలని కోరుకుంటున్నాం. చిరంజీవి గారు, ఇప్పుడు మన జహీరాబాద్ డివిజన్ సెక్రటరీ నరసింహ గారు మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళా ముంగటికి ఇండియా కూటమి ఐక్యత, ఇండియా కూటమి ఐక్యత. గెలిపించపరిచిన అభ్యర్థిని ఉజ్వల్ రెడ్డి అన్న గారిని మన సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి జలాల్దేవ్ అన్న గారు షాలోతో సన్మానించి పూలమాల వేస్తారు. అట్నే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు భాస్కర్ అన్న గారు కూడా పూలమాలతో సన్మానించారు. అందరూ దయచేసి క్లాప్స్ పెట్టండి, అభినందించండి. భాస్కర్ అన్న మనకందరికీ పేదలకి ముద్దు బిడ్డ, కులం లేదు మతం లేదు భాస్కర్ అన్నకి. ఎందుకంటే నేను చిన్నగా అప్పటి నుంచి చూస్తాను, ఏ తిప్పల్లో ఉన్న మనిషికి భాస్కర్ అన్న సపోర్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి 3 నెలల సందేశం కొద్దిగా లేట్ అయ్యి పర్వాలేదు, కానీ జహీరాబాద్ అభివృద్ధి గురించి ఏ రకంగా ఉన్నాయన్నా మీరు చెప్తారు. నేను ఆశపడుతున్నా భాస్కర్ అన్న మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను. సభాధ్యక్షులు జలాల్ గారు మరియు నరసింహన్న గారు, ఆనంద్ భాయ్, అందరు పేరు పేరున, మన బైసాబ్ నరసింహన్న అందరు కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ ప్రోగ్రాంకు విచ్చేసినటువంటి మన ముఖ్య వక్త, ముఖ్య మనిషి మీ ముందున్నాడు. ఆయన మీకందరు కాకుండా ఇక్కడున్న జహీరాబాద్ వాసులకు అందరు కూడా సుపరిచితుడే. ఆయన పేరు ఉజ్వల్ రెడ్డి అన్న గారు. ఆయనతో పాటు కౌన్సిలర్స్ నాగిరెడ్డి గారు, అత్తర్ గౌర్ గారు, శేఖర్ అన్న గారు అందరూ కూడా విచ్చేశారు. మరియు పత్రికా విలేకరులకు మరియు సిఐటు మహిళా సోదరులకు, అన్నదమ్ములకు అందరూ కూడా పేరు పేరు నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా. అయితే ఈ యొక్క కూటమి ప్రోగ్రాంకు ఈ విధంగా ఉంది. గరీబుల గురించి, పేదల గురించి పనిచేసే పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ.
కాంగ్రెస్ పార్టీకి కులం మతం ఉండదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలించిన రోజులు ఎప్పుడు కూడా మన జైరాల వరకు మనం కూర్చుకుంటే కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలోనే షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అయింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలోనే మహేంద్ర అప్పుడు పేరు వేరుండే, కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో నారింజవాగ్ అయింది. ఇది ఆ తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాలు వేరే పరిపాలన వచ్చినా, రాష్ట్రంలో వచ్చినా, దేశంలో వచ్చినా జైరాబాద్ మాత్రం ఇలాంటి డెవలప్మెంట్ జరగలేదు. ఉన్న ఫ్యాక్టరీ మూతపడి చెరుకు రైతులు అందరూ ఈరోజు రోడ్డు మీద పడ్డారు. పనిచేసే కార్మికులు నిన్ననే మేడే అందరు కార్మికులు కూడా రోడ్డు మీద పడ్డారు. నారింజవాగ్ పరిస్థితి కూడా అంతే. ఇప్పటి వరకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాలు పరిపాలించిన, బీజేపీ సెంట్రల్లో ఉన్న గంపెను మట్టి కూడా తీసి నారింజలు కొట్టిన పడేయలేదన్న ఒక బాధ మనకు. అయితే సిఐటి కూడా అంతే. ఎక్కడ గరీబ్ ఉందో, ఎక్కడ ప్రజలు ఉన్నారో, ఎక్కడ ఎవరికైనా ఇష్యూ అయిందో అప్పుడు నేను తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండి మా జలాలపై నేను ఫస్ట్ ప్రత్యక్షమవుతుంటే కూరగాయలు అమ్ముకొని అన్నమ్మకి ఇబ్బంది అయితే ఇద్దరు అమ్మాయి తాళం చెల్లి వాళ్ళు కొడుతుంటే, ఎవరికైనా గరీబులు ఉంటే భాస్కర్ అన్నారా కరెంట్ ఆఫీస్లో పలానా మనిషి టార్చర్. జలాలపై మేము ఎవరైతే ఉన్నామో మా అందరం కూడా ఒక ఫోన్ చేస్తే ఒక 30 మంది చేయమేయండి. ఎవ్వరు ఏ పార్టీ ఉన్నది, ఏ కులం ఉన్నది, కరెంటు సమస్య వచ్చినా, ఎవడన్నా చచ్చిపోయినా, ఇంకేదైనా ఇబ్బంది అయినా మేము పోరాడుతుంటే, కేసులు చేసుకుంటుంటే, ఏదైనా మున్సిపల్ షెటర్ కప్ చేసి అన్ని విధాల ఒక అన్నదమ్ములా కూర్చొని మేము ఫైట్ చేసినాం. అప్పుడు కూడా ఈ ఎర్ర జెండర్ పట్టుకొని మా సిపిఎం నాయకుడు జలాల్పై మా సోదరుడు ఎక్కడైనా పబ్లిక్ ఇష్యూ వచ్చిందంటే రాయకోట్ మండలం ఉంటే ఇతను కనిపించాలి, జనసంఘ మండలం ఉంటే ఇతను కనిపించాలి. ఎవరికైనా ఎక్కడ కేసులు ఎవరికైనా అంటే మా నాయకుడు మా బ్రదర్ జలాల్పై పేరు మీదనే ఎక్క కేసులు ఉంటుండే. ఈ విధంగా పోరాడుతూ వస్తున్నాం. అనుకోకుండా మన మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రావడం జరిగింది. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చింది, మీకు అందరూ కూడా తెలుసు. గరీబులకు సంబంధించిన స్కీమ్స్ ఏమున్నాయో అన్న ఉజ్వలన కూడా తర్వాత డిస్కస్ చేశారు. ఇప్పుడు మన పార్టీ వచ్చింది, గరీబుల పార్టీ వచ్చింది. ఖచ్చితంగా ఎంపీ ఎలక్షన్లో ఎవరు 106 కానీ 600 కానీ ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది. ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తున్నది మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో. గెలిచిన తర్వాత మీకేమైనా సమస్యలు ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ దిక్కెళ్ళి ఖాళీ ప్లాట్ ఉన్న వాళ్ళకు 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నారు. ఎవరికన్నా గవర్నమెంట్ స్కీములు ఏమన్నా అందలే అంటే మేము పార్టీలు వేరైనా ప్రజల గురించి కొట్లాడే మనసుతో నాయకులం. జలాల్బాయ్ దగ్గరికి మీరు వచ్చిన, నరసింహారాయణ దగ్గర మీరు వచ్చిన, మేమందరం కలిసి మీ సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తాం. మీకు కూడా ఇంత ఓపెన్గా మీరు మద్దతు చేస్తున్నారు, మీ పైసలు మీరు ఖర్చు పెట్టుకొని మీరు ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా మీరు కూడా మాలో ఒక భాగస్వామ్యం అనుకొని మీ గురించి మేము కృషి చేస్తాం. ఇకపోతే ఉజ్వల్ రెడ్డి అన్న, ఈయన ప్రాపర్ స్వతహాగా వచ్చేసి ఈ పక్కన చెరక్పల్లి విలేజ్ ఉంది, అందరూ తెలుసుకుంటుకుంటా. చెరక్పల్లి విలేజ్లో ఒక పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు, చెరక్పల్లి నారాయణ రెడ్డి. అంటే తెలియని ఎవరు ఉండరు. ఆయన ఒక ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఎంపీగా గెలిచి రాజకీయంలో ఒక టర్ము వన్ సైడ్గా అతను ఊపు అందించుకున్న నాయకుడు. ఆయన కొడుకే ఉజ్వల్ రెడ్డి గారు. ఉజ్వల్ రెడ్డి గారు ఒకప్పుడు అమెరికా అంటేనే రాష్ట్రంలో ఎవరో 5-10 మంది పోయేటోడు. ఆయన చదువుకొని డాక్టర్ అయ్యి అమెరికాలో 25-30 సంవత్సరాల ముందు పోయి డాక్టర్ వృత్తి చేసుకొని వచ్చిండు. ఆయన ఆలోచన దాదాపు ఇక్కడ ఉన్న కందరు తెలుసు, ముఖ్యంగా జలాల్బాయ్కి నరసింహన్నకు. ఒక 4-5 ఇయర్స్ బ్యాక్ మన దగ్గర ఆంధ్రప్రదేశ్ 10 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్నప్పుడు మా దగ్గర బోరు నీళ్ళు అన్ని ఎండిపోయినా చేరే వాళ్ళ किधर भी देखो नीचे से पानी ऊपर नहीं आ रहा, पूरा पानी पूरा चला गया. वो टाइम में अन्ना अमेरिका में था, कम से कम खुद के पैसा खर्च कर लेके उसका ओन ट्रैक्टर्स अन्ना का फोटो ट्रैक्टर को बनाते थे. अन्ना हमारा नहीं पहचानते थे. आजकल सियासत में जेब में से पैसा का तो छोड़ दो, गवर्नमेंट का पैसा लगा बोलो तो
आधा पैसा जेब में, आधा पैसा में पब्लिक में खर्च करने लीडर्स है। अन्ना वही दिन खुद के पैसे से जेरोल में किधर भी पानी का प्रॉब्लम नहीं होने बोल के ट्रैक्टर्स लगे जो पानी का सर्वे करे, और अन्ना वहाँ पे रह के किधर भी खुद अन्ना को फोन करे तो बस एक यूथ था उज्ज्वल अन्ना फाउंडेशन, अन्ना का उज्ज्वल अन्ना का जो फाउंडेशन का तरफ से बहुत सारे लोगों को एजुकेशन दिए, बहुत सारे लोगों को उन्हें हर जगह हेल्प करा। वैसा आदमी परसों एमपी सब जने साहब तो आप तो खुद कर रहे, आप गवर्नमेंट पे एमपी ठहरो और गवर्नमेंट से भी पैसा भी ला सकते, स्कीम ला सकते। ऐसा जलाल भाई मैं जब मेरे जैसे आया अन्ना को रिक्वेस्ट करे तो उधर अमेरिका छोड़ के इधर आके पोत जैराबाद टाउन में 3 मेडिकल कैंप लगाए, 3 मेडिकल कैंप करे। आज मैं अन्ना के तरफ से आपको वादा कर रहा हूँ जलाल भाई, आप कभी भी गरीबों के लिए अच्छा और एक मेडिकल कैंप लगाएंगे और 2 मेडिकल कैंप लगाएंगे। नरसिम्हा का गले में भी मेडिकल कैंप लगाए। हर लेडीज को कुछ प्रॉब्लम हो या आंख को प्रॉब्लम हो तो फ्री ऑपरेशन, फ्री आई, ऐसा करे सो आदमी उज्ज्वल अन्ना है। ठीक है, टिकट तो नहीं मिले तो परो नहीं, अन्ना तो डिसाइड करे और टिकट की जरूरत नहीं है। आप लोगों के साथ रहते, जलाल भाई के साथ रहते, आप जैसे लोगों के साथ रहते, हमेशा चेहरा में सर्विस करते रहो। तुम्हें जैसा हूँ इधर ही रहते बोल के अन्ना यहाँ पे रखे। आज सुरेश शेट्टर अन्ना एमपी टिकट आ गए, सुरेश अन्ना को एमपी टिकट आए तो मेरे का सर को बोल के डेली सुबह से शाम तक हर गली में हर जगह अन्ना हमारे सबको लेके फिर रहे। ये टाइम में हमारा भाई जलाल भाई फोन करें, अन्ना सुरेश अन्ना कहाँ की कहने सीख रहा था, कुछ भी ना दो उज्ज्वल अन्ना यहाँ तक आना हम बहुत ही खुश होता। बोलो तो उज्ज्वल अन्ना को बोलते वैसा कुछ नहीं यहाँ तो बोल के आ गए। उसके लिए ఉజ్వల్ అన్నకు बहुत बहुत థ్యాంక్స్। ఈ యొక్క అంటే చెప్పుకోకపోతే చాలా ఉంటాయి, నేను చివరికి ఒకటే అంటున్నాను, మీరందరూ మనస్ఫూర్తిగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి వన్ సైడ్గా ఓట్లు వేయాలి। మనమే గెలుస్తున్నాం, రాష్ట్రంలో మనం ఉన్నాం, మళ్ళీ కూడా ఢిల్లీలో కూడా జెండా ఎగరేద్దాం మనం అందరం అనుకుంటే ఖచ్చితంగా సాధిస్తాం। ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా బ్రదర్ జలాల్ భాయ్కి మరోసారి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను। భాస్కర్ అన్నకి థ్యాంక్స్। నాటి నుంచి నేటి దాకా గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా చక్కగా చెప్పి మనకు అర్థంలాగే భాషలో చెప్పారు కాబట్టి సిపిఐ పార్టీ తరఫు నుంచి అభినందిస్తూ, ఇప్పుడు మన నాయకులు జాతీయ నాయకులు ఈటీ నరసింహ గారు మనకందరికీ పరిచయం నాయకులు, మన సార్ ఈటీ నరసింహ గారు మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా మన వాళ్ళు కాంగ్రెస్ నుంచి ఉంటారు, ఇంకా మన సిపిఐ వాళ్ళ నుంచి ఉంటారు। ఎందుకంటే పత్రికా మిత్రులు ఇక్కడ ఉన్నారు, మన ఈటీ నరసింహ గారు మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాం। हमारे ख़वातीन बहनों भाइयों, यहाँ की अगर पब्लिक मीटिंग देखे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग थोड़ा तेलुगु से ज़्यादा उर्दू समझने वाला है बोल के मैं उर्दू में बात करने का कोशिश की। ये मीटिंग की सदर जलाल साहब, जो इंडिया कूटमी के जानिब से जो यहाँ इधर का उम्मीदवार सुरेश शेट्टर साहब को जिताने के लिए दिन रात कांग्रेस सीपीआई वाले यहाँ मेहनत कर रहे। यहाँ के मशहूर लीडर उज्ज्वल रेड्डी साहब, भास्कर साहब, नरसिम्हा साहब, या सीपीआई के लीडरों को पूरों को एक बार मुबारकबाद देते हुए मैं 2-3 बात बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ के जितने आदमी बैठे हमारे ख़वातीन बहना स्पेशली सोचना चाहिए, मैक्सिमम गरीब लोग लाल झंडे के पीछे आते।
जिस दिन कांग्रेस हुकूमत में थे, सीपीआई लड़के गरीब लोगों को जमीना दिलाए, पट्टा दिलाए, घरा दिलाए, रेशन कार्ड दिलाए। एक अब की बात बोल रहा हूं, तेलंगाना के होने से पहले आप लोगों को जमीन मिला, इंदिराम्मा का घरा मिला, रेशन कार्ड्स मिला। ये 10 साल में एक भी आदमी को रेशन कार्ड मिला क्या? आप लोग बोलिए, एक भी आदमी को रेशन कार्ड, एक आदमी को पट्टा 10 गज का, 20 गज का कहीं एक आदमी को मिले क्या? नहीं मिले। फिर भी अब या नरेंद्र मोदी साहब समझ रहे मैं हिंदुस्तान में और एक बार मैं आ सकता हूं बोल के। ये कहीं के लिए बोल रहा, 2 बार नरेंद्र मोदी आके हिंदुस्तान में कहीं पब्लिक के लिए काम नहीं करा। अगर करे सो काम बोलो तो जो कम्युनिस्टा कांग्रेस में हुकूमत में इस वक्त जितने भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज पब्लिक सेक्टर से बनने से चीज दूसरे कई लोगों को बेचे हटके कोई भी नरेंद्र मोदी काम नहीं करा। मगर उसकी हिम्मत कैसा हो रहा? तीसरी बार आ तुम बोल के मजहब, दुनिया के पब्लिक को मजहब के नाम से नफरत फैलाना, मेजॉरिटी लोगों को सपोर्ट करे सरकार, बात करना, वोटा लेना, जीतना बोल के समझ रहे। मगर यहाँ के लोगों को मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जीतने की चांसेस नहीं है। ये लिख के रख लो, जून 4 को आप लोगों को मालूम होता। ये बात कई को मालूम बोले तो जा उन्होंने नॉर्थ इंडिया से जिधर से सीटा मिले वो आज सीटा देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने गए तो कई जगह पर पब्लिक अकाल रहे इंडिया कूटमी को। ये मालूम होगा उन लोगों को, नफरत फैलाना, मजहब के नाम से, भगवानों से नाम से वोट ले रहे, हमारा लाइफ पूरा सत्यानाश करे, कोई किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे लोगों को तकलीफ हो रहा। जान दो, हिंदुओं को बोले तो हिंदुओं को क्या कुछ बेनिफिट हुआ या हिंदुओं को नहीं हुआ, मुसलमान को नहीं हुआ बोल के पूरे नॉर्थ इंडिया में उसको तकरीबन 100 सीटा कम होने की चांसेस है। जो आज मीडिया है, मेन मीडिया मोदी के फेवर में बता रहे, मर जा, नॉर्थ इंडिया का हिंदी का यूट्यूब चैनल से और ओरिजिनल चीज वो यूट्यूब चैनल्स में मालूम हो रहा। आप लोग होना बोले तो देख लीजिए। एक ध्रुव राठी, एक 30 साल का बच्चा आज नरेंद्र मोदी को, एनडीए को हिला दे रहा। जो हकीकत है वो आज यूट्यूब चैनल में डाले तो परेशान हो रहा। कई करोड़ों लोग वो यूट्यूब को देख रहे, उसमें अगर कमेंट देखे तो मालूम होता पब्लिक किसके फेवर में है, मोदी के खिलाफ कितना है वो एक मालूम है। और एक नरेंद्र मोदी का खुद यूट्यूब चैनल है, आप लोग देखिए, उनका खुद यूट्यूब चैनल में 1 लाख 2 लाख रहता, उसका मिलियंस में रहता। एक बात बस है, मोदी हारने का चांसेस है। मगर थोड़े मीडिया चैनल्स मोदी की हवा है, मोदी की हवा है, मोदी की गारंटी है, मगर कुछ भी गारंटी नहीं है। 2 बार इलेक्शन होने के बाद आज 7 तारीख को इलेक्शन फिर है, 2 बार होते ही मोदी की वॉइस सुनिए आप लोग। मोदी की गारंटी बोलने वाला एनडीए के गारंटी बोल रहा, मोदी की गारंटी बंद कर दिया। कई को बंद करा? फर्स्ट टाइम होते ही हिंदू मुसलमान के नाम से, फिर सेकंड टाइम मोदी गारंटी चले गए, एनडीए गारंटी आ गया। 1 बार 2 बार आदमी मानता, भाई इन्हों कुछ काम करता बोल के बोले, 2 बार दिया चांस, तीसरा बार कोई देने को तैयार नहीं है। मगर झूठा फैला करके एक हवा है बोल के नौजवानों में जब भगवानों के नाम से फिर भटक के वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मगर नॉर्थ इंडिया में उसका चांसेस नहीं है। साउथ में थोड़े वोट्स बढ़ सकता, मगर सीटा कम होने की चांसेस है। जो कर्नाटक में आए वो भी सीटा कमाने के चांसेस है। मैं ये बात कहीं को बोल रहा हूँ बोलो तो
पूरे हिंदुस्तान में वो रिटायर्ड जजेस हो, रिटायर्ड आईएएस हो, जो इंटेलेक्चुअल्स हो, आज पूरे लोग रोड पे निकल के इंडिया कूटमी को जिताने के लिए कोशिश करे, पढ़े लिखे लोग। कई को मालूम, जो आजादी लाखों आदमी मेहनत करके आजादी लाए, कुर्बान दिए। जो कांग्रेस कम्युनिस्ट का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब थे, 14 ईयर जेल में थे। ऐसा कई लोग भगत सिंह के जैसा लड़ने के बाद ये आजादी आया। ये आजादी जो दस्तूर है बाबा साहब अंबेडकर साहब का, वो उसको निकाल के फेंक देने का कोशिश इंडिया कूटमी कर रहा। इसीलिए इन लोग ये बहुत खतरा है, मोदी को हराना जरूरी है बोल के उन लोग आज पूरे रोड पे निकले। ये जहीराबाद का लोग भी ये सोचना चाहिए, ऐसे वोट देना चाहिए। बीजेपी को डिपॉजिट भी नहीं आता, बीआरएस का तो छोड़िया, उसका काम हो गया। हमारे यहाँ के लोग सोचना, अपन के जितने भी हमारे भाईना भाया बैठे से लोगों को हम गुजारिश कर रहे कम्युनिस्ट पार्टी के जानब से, जितने 10 आदमी घर में है तो 10 के 10 वोट निकाल के डालना चाहिए। जहीराबाद का जो सुरेश शेट्टर साहब उम्मीदवार है, उसका निशान हाथ था। ये बहुत जरूरी है, जितने भी लोग अपन के हैं 100 को 100% पोलिंग डालना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले दिनों में जो बाजू स्टेट से अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, आज क्या हालत है आप लोगों को मालूम। वो हालत हिंदुस्तान में बनने वाला है। आने वाले दिनों में अपन वोट भी नहीं डाल सकते। ये ऐसा काम करने को मोदी कोशिश कर रहा, इसीलिए तो कई लोग बाहर निकल रहे। कई यूट्यूब चैनल जान को खतरा है, फिर भी उसके खिलाफ हकीकत बता रहे। हकीकत कहीं को हम जान गए तो परवाह नहीं, मगर ये देश की दस्तूर बचाना बहुत जरूरी है बोल के कई यूट्यूब चैनल से आज रोड पे निकले। ये हमारा काम है। कहीं को बोले तो आने वाले अपन के बच्चों को कोई जॉब नहीं मिलता। एक बात बताइए, मोदी आने के बाद में गवर्नमेंट जॉब्स किसी घर में मिला? अगर कांग्रेस की कम्युनिस्ट हुकूमत है सो कर गांव में किधर उधर इधर जॉब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब मिलते थे। पुराने शहर हैदराबाद में डिफेंस है, मालूम है आप लोगों को, डिफेंस मैन्युफैक्चर, उसमें 10 साल से एक भी आदमी का जॉब नहीं है। आउटसोर्सिंग 15-20 हजार से काम करा है। ऐसे राहुल गांधी साहब बोले कई करोड़ों जॉब्स रेलवे में, डिफेंस में, एलआईसी में जॉब्स है, मगर जॉब्स देने के लिए तैयार नहीं है। वो इंडिया कूटमी आने के बाद में वो जॉब से तुम बोल के गारंटी दिए। पेट्रोल की रेट अगर एक्चुअल वर्ल्ड के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से देखो तो पेट्रोल 60 रुपए मिलना चाहिए, और आज कितने मिल रहा? और ये पेट्रोल डीजल के नाम से 20 लाख करोड़ रुपए एडिशनल इन लोगों का कमाए। 20 लाख करोड़ रुपए करो, 16 लाख तो उसके 200 को माफ कर दिए। ये पूरे मजहब के नाम से वोट लेना, या हिंदुओं को या मुसलमानों को, कहीं किसी को गरीब लोगों के लिए काम नहीं करना, उसकी दिमाग है। वो आज मालूम हुआ, मालूम हो के जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो है, मैं समझता हूं वर्ल्ड में इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड में नहीं मिलता। वर्ल्ड में इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलता। इसका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, हर सीट झूठा फैलाना, हर चीज झूठा, तो ओरिजिनल तो बोल सकते ही नहीं है। मैनिफेस्टो में एक रहता, पब्लिक को डराने के लिए कांग्रेस इंडिया कूटमी आए तो पूरे हिंदुओं का पूरा चीज खरीदते, मुसलमानों को देते। अरे हम 55 साल तो हुकूमत में थे, इतनी झूठ। अरे कोई लोग सामने वाला असरा बोल के भी मालूम नहीं हो रहा, अरे है क्या है उसमें वो नहीं देख सक रहे। तो इसका एक ही आप लोग जो मोदी की जो मजहब के नाम से नौजवान इधर इधर फिर रहे, जो चैनलों में आ रहा, वैसा हवा नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, जो मणिपुर में वो नहीं तो कौन सा, और एक गोवा में रह दो,
इधर पूरा भी जा नहीं सके, टायर भी नहीं सक रहे। कश्मीर से तो 3 सीटा नहीं टायर। खाली एक चीज कौन सा है तो फैलाते रहते, मगर उसके 100 झूठ रहता, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसीलिए आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं, ये और एक बार यहाँ तो केसीआर था, उसका दोस्त था, उसको अकाल के फेंक दिए, मगर मोदी को उससे ज्यादा अकालना बहुत जरूरी है। अगर उसको अकालेंगे तो 10 साल के पहले क्या डेवलपमेंट गरीब के लिए, पब्लिक के लिए, मजहब को हटके जो सोचता वो सोचने के हुकूमत आए तो जी अपन का प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस रहता। हम लोग कोई आदमी, कोई पार्टी वाले मजहब के खिलाफ कोई बात करे क्या? हम क्या बोलते, मजहब घर तक रहना बोलते। हिंदुस्तान में एक आदमी तो नहीं है ना, एक मजहब नहीं है ना, कई मजहब हैं। मजहब आपका इंडिविजुअल है, घर तक रखो, मगर जो सियासत में आए इस वक्त मजहब नहीं आना बोलते, जब ही डेवलपमेंट होता। डेमोक्रेटिक रूलिंग होना चाहिए। हम मजहब के नाम से अब आजू बाजू कंट्रीज देखिए क्या प्रॉब्लम में है, डेवलपमेंट नहीं होता। मजहब तो हर आदमी को है, हर आदमी को एक भगवान है, हर आदमी किसका भगवान को उसको पूजा करते, उसमें कोई गलती है बोल के नहीं बोल रहे, मगर उसको रोड पे ला रहे, उसके नाम से वोट ले रहे। जो 10 साल से इन्होंने काम करा वो काम एक भी बोलने को तैयार नहीं है। उसका मैनिफेस्टो नहीं बोल रहा, मगर कांग्रेस की मैनिफेस्टो बता रहा हूं। 10 साल में क्या करा नहीं बोलता, उसका मैनिफेस्टो में क्या है नहीं बोलता, मगर दूसरों के खिलाफ बात करते रहता, पूरा 100% झूठ रहता। इसीलिए जज्बात में आके आप लोग घर में बैठे तो भी मुश्किल है। उस दिन जितना भी धूप रहने दो, सुबह उठल के वोट डालना बहुत जरूरी है। उस दिन ये आप लोग सोचना चाहिए। एक दिन मेहनत करके जो इंडिया का कूटमी का उम्मीदवार है सुरेश शेट्टर साहब को अगर जिताएंगे तो यहाँ की पूरा सिचुएशन चेंज होने की चांसेस रहता है, या जो गरीब के लिए सोचने की चांसेस रहता है। अगर दूसरा कोई भी आन दो, इनको हटके दूसरा कोई भी आन दो, कोई काम नहीं होता। मजहब के नाम से वही करना। यहाँ भी बीजेपी का उम्मीदवार है, इन्हों तो हमेशा यही पटका के रहता, फिर आने वाले दिनों में भी यही बोलते रहता। ये आप लोग सोचना चाहिए। मैं ये बात आप लोगों को कई को बोल रहा हूँ, बोलो तो कई लोग समझ रहे भाई हमारे 10 साल से तकलीफ वैसे ही है। कई हमारा बहनों से मिले तो यही बात बोले, रेशन कार्ड नहीं है, मगर हुकूमत में कौन है? हमारे को घर नहीं है तो हुकूमत में कौन है? यही बदमाशा है ना। ये बदमाशा गए तो अपन को पूरा सुधरता। ये बदमाशा गए तो पेट्रोल की रेट कम होता, ये बदमाशा गए तो गैस की रेट कम होता, इन लोगों का गए तो तरकारी का रेट कम होता, अब उनके बच्चों को जॉब्स मिलता, फिर गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर से फिर आने के चांसेस रहता। ये पूरा आना बोले तो इंडिया आज नेक्स्ट आने वाले दिनों में जून 4 को 100% हुकूमत बना रहे। हुकूमत बनाने के बाद हर चीज़ हिंदुस्तान में चेंज होता, उसमें कोई डाउट करने की चांसेस नहीं है। और एक बार जो 13 तारीख इलेक्शन से उसमें आप लोग पूरे सुरेश शेट्टर साहब को वोट डाल के अच्छे से अच्छे मेजॉरिटी से जिताना बोल के मैं यहाँ के लोगों को, जहीराबाद लोगों को अपील करते हुए मेरा तकरीर खत्म करना चाहिए। आपको बधाई देता हूँ कि हिंदी में ऐसा समझे साहब हमें कि गली में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, हम सबको पता है। 70 रुपये को लीटर होने के लिए कांग्रेस को 70 साल हो गए पेट्रोल के वास्ते, लेकिन मोदी की हुकूमत 10 साल के अंदर अब की बार 400 पार नहीं बल्कि पेट्रोल तो सरकार 100 पार करा दिया। फिर से अगर कि नरेंद्र मोदी अगर हमारे बीच आएगा तो सबसे पहले ये जो गंगा जमुना तहजीब है भारत के अंदर उसको ख़त्म कर देगा। वो भाई भाई को लड़ा देगा, बहन बहन को लड़ा देगा। एनआरसी के नाम पे, सीए के नाम पे खाना बदोशों की ज़िंदगी ये मोदी गवर्नमेंट
करने के लिए तैयार है। इसलिए हमने सोचा कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने कि घर टू घर, डोर टू डोर जाएं, सुरेश शटकार साहब के लिए वोट मांगे। और हमारी माँ बहनों से मैं खासकर अपील करूँगा कि एक औरत घर को बनाती है और एक औरत घर को बिगाड़ती भी है। सर का ताज अगर किसी को बनाना है तो वो औरत के हाथ में है, क्योंकि औरत माँ है, बहन है। औरत ही सब कुछ कर सकती है भारत के अंदर। मेरी भारत की बेटी आज राष्ट्रपति तो बनी, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद में भी ये नरेंद्र मोदी मेरी बहन को कहीं या पार्लियामेंट की ओपनिंग में हो या राम मंदिर की ओपनिंग में हो, कभी भारत की बेटी को ये स्वीकार नहीं करा। क्यों? क्योंकि एक वो आदिवासी जात से आती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो चाहता है सिर्फ आपस में लड़वाना, हिंदू मुसलमान करवाना। उसी तरीके से आज जो हमारे बीच मौजूद है विजय रेड्डी साहब, इनके जो डैडी थे नारायण रेड्डी साहब, जिस वक्त हम 2001 में भारत नगर कॉलोनी बसाए थे, उन्होंने जहीराबाद के एमपीपी रहा करते थे और आज भी है बाहर। उस वक्त में मैंने कहा था कि नारायण रेड्डी साहब, हमारे पास हमने गुड़सियाँ डाले हैं और पानी की किल्लत है। उसी तरीके से हमारे बच्चे 6-7 किलोमीटर स्कूल को नहीं आ सकते। नारायण रेड्डी साहब को भारत नगर ले जाने के बाद फरीद साहब का दौर था। फरीद साहब उस वक्त एमएलए थे, मिनिस्टर थे। नारायण रेड्डी साहब ने कहा, फरीद साहब आपके लोग पानी के बगैर जी रहे हैं, स्कूल के बगैर जी रहे। नारायण रेड्डी एमपीपी रहने के बावजूद उस वक्त हमें स्कूल सैंक्शन कराया और 2 बोरवेल सैंक्शन कराए। मैं उसी तरीके से विजय रेड्डी साहब अगर आज के दौर में जैसा भास्कर अन्ना बताए, बेशक जो अगर शटकार अन्ना को टिकट नहीं आता तो विजय रेड्डी साहब को ही टिकट आता। आशा करेंगे कि 2026 में विजय रेड्डी साहब हमारे साथ में रहेंगे, क्योंकि अरबपति आदमी रहने के बावजूद मैंने पैसे तो बहुत कमाए जलाल भाई, अभी पैसे नहीं, जहीराबाद डिवीजन के लोगों की सेवा करना है। करोड़ों रुपए अपने जेब के लगाए हैं पूरे पार्लियामेंट एरिया में। अभी मैंने बाजू बैठा था, बोले जलाल भाई कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद आप बड़ा मेडिकल कैंप लगाए, मेरी माँ बहनों को जो ज़रूरत का सामान है मैं ही पहुँचाता हूँ। तो ये क्योंकि तेलुगु की कहावत है, मनसु ఉంటే మార్గం ఉండదు, మనసు మా దగ్గర ఉంటే మార్గం మన దగ్గర ఉన్నాయి। కాబట్టి ఇప్పుడు పెద్దలు గౌరవులు విజయ్ రెడ్డి గారు సందేశం ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను। मंच पे बैठे सो सभी बड़े लोगों को, जलाल साहब को, नरसिम्हा साहब को, नरसिंह लोग, आनंद, महबूब और सब बड़े लीडरों को, मेरे साथ आए सो मेरे भाइयों को, सबको भी, और इधर बैठे सो सीपीआई के जो कार्यकर्ता है सबको हमारे लाल सलाम। और ये इंडिया के अलायंस की तरफ से सीपीआई जलाल भाई जो मीटिंग लगाए हैं, और इसमें देख रहा हूँ बहुत बड़े पैमाने में औरत लोग पार्टिसिपेट कर रहे। जैसे भाई से पहले बोले थे कि औरत लोग अगर दिल पे लेके कुछ काम करे तो वो पूरा हो जब तक नहीं छोड़ते। तो मैं आप सब लोगों से एक गुजारिश करता हूँ कि मई 13 तारीख के दिन आप लोग सब लोग अपने घर से निकलिए, अपने आजू बाजू घरों में कितने भी भाई और बहन रहते हैं सबको लेके जाके वोट डालना, वोट डलाना आपका जिम्मेदारी है। सब हाथ ऊपर करके एक बार बोलो, हम सबसे वोट डलाएंगे बोल के, सबसे वोट डलाएंगे और हाथ को वोट डलाएंगे। क्या बोलते हैं? हाथ को वोट डलाएंगे। देखो आने वाले चुनाव ये एमपी या किसी को सुरेश शटकार को वगैरह वगैरह को चुनने का नहीं है। ये इलेक्शन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री या मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है। ये चुनाव आ रहा है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है, आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल के लिए है। ये बार अपन गलती करें तो अपन आने वाले नस्लों के लिए धोखा करे से लोग रहते। 10 साल हो गया अपन देखे जो सरकार अभी दिल्ली में हुकूमत चला रहा है बीजेपी सरकार, 10 साल में जो वादा करे एक भी पूरा नहीं करे। पहले तो बेरोजगारी के बारे में बात करें, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिलाते बोले, तो वो हिसाब से कितना होता? 20,000 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था। पर
हकीकत क्या है बोल तो सिर्फ 7 लाख का रोजगार मिला। तो ऐसे कई झूठ, एक नहीं दो नहीं 100 झूठ बोलते गए। अब ये सब झूठ लोग पहचानना शुरू करें। तो आपके बाहर नया जुमला लेके आए। जुमला क्या है? मजहब के बीच में लड़ाई लगाना, मजहब के बीच में भेदाभिप्राय लेके आना, मजहब के भाई बहनों के बीच में लड़ाई लगाना, घरों में एक भाई रहता, बीवी रहती, सब रहते, उनके बीच में लड़ाई लगाना। तो उनके वास्ते देखो, उन्होंने कभी देश के तरक्की के बारे में बात नहीं कर रहे। आज बात कर रहे क्या बोलते हो? मंदिर के बारे में बात कर रहे, मस्जिद के बारे में बात कर रहे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रहे, मुसलमानों के शरिया लॉ के बारे में बात कर रहे। दूसरे तरफ देखो, कांग्रेस सरकार है, राहुल गांधी है, क्या बोल रहे? पहले बात तो नफरत को मिटाओ, मोहब्बत को जिताओ बोल रहे। दूसरी तरीके क्या बोल रहे? देश का डेवलपमेंट कैसा होता है, बच्चों को नौकरी कैसा देना, औरतों को उनका साधिकार कैसा करना, ऐसा हर बात पे एक योजना है। 5 न्याय बोल के जो स्कीम लगाए, हर एक कौम को, हर एक मजहब को, हर एक जाति को, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबके लिए एक प्रोग्राम है। वो स्किल लेके आके क्या बोल रहे? ये डेवलपमेंट के हिसाब से हमारे को वोट डालो बोल रहे। बीजेपी क्या बोल रहा? मजहब के नाम पे डालो। मजहब घर तक सही है, चाहे हिंदू रहने दो, चाहे मुसलमान रहने दो, चाहे ईसाई रहने दो। मजहब अपना पर्सनल चीज है। घर में रहो, अल्लाह को करो, राम को करो, ईसाई को करो, किसी को भी करो, अपनी मर्जी है। मगर क्या बोल रहे बीजेपी वाले? तुम्हारा मर्जी नहीं है। हम जो बोलते घर में भी वही करना, बाहर भी वही करना। नहीं चलेगा। अब 10 साल चला, 10 साल के बाद भी अगर अपन उनको चलने दे तो अपने आने वाले नस्लों के साथ अपन धोखा करे सुने होते। और क्या बोल रहे हैं? अब के बार 400 पार। तो मैं बोल रहा हूं, गौर से सुनो, अपन दिल पे लेके ये बार करना, क्या करना? अब के बार बीजेपी का अंतिम संस्कार करने का। और बोलते क्या है? सबका साथ, सबका विकास। मैं बोलता हूं सबका साथ, सबका विकास जो नारे लेके आए, उससे बड़ा बकवास कुछ नहीं तो 210 सालों में तो सिर्फ बकवास की बात कर रहे हैं लोग। किसी को फायदा हुआ? 2 जने को फायदा हुआ पूरा हिंदुस्तान में, सिर्फ 2 जने को, अदानी को, अंबानी को, अपना गुजरात के भाइयों को फायदा करे सो। तो भाइयों समझो, मैं पहले भी बोला, फिर बोल रहा हूं, ये चुनाव किसी आदमी के लिए नहीं है, किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी लीडर के लिए नहीं है। ये आने वाले आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है, आने वाले अपने नस्लों के लिए है। ये दिल में रख के जोश और जुनून से काम करना। और एक बात मैं बोलता हूं, आप बिल्कुल आप सीपीआई के कार्यकर्ताओं के लिए बोलता हूं। सीपीआई के कार्यकर्ता में एक खूबी है, कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं में खूबी रहता, कभी भी पार्टी पावर में नहीं रहता ये तेलंगाना में, फिर भी पार्टी को पकड़ के चलते। क्यों बोलते हो? ये जो कार्यकर्ता सीपीआई के पूरे उसूलों के ऊपर चलने वाले कार्यकर्ता है। तो आपको सबको मुबारकबाद देता हूं। और आने वाले चुनाव में यही दिल में जुनून, जोश रख के क्या करिए आप बोलो तो हर घर को जाके हाथ को वोट डालाए, सुरेश शक्कर को जिताइए। जिताने से क्या होता? नफरत को मिटाएंगे, अपन मोहब्बत को जिताएंगे। यही नारा लेकर चलेंगे और आगे देखते जाएंगे नारे से देश की भविष्य कैसा होता है। ये मुझे मौका दिए से सभी बड़े लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए समाप्त करता हूँ। शुक्रिया। विजय रेड्डी साहब का बेपना शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरी माँ बहनों से और मेरे भाइयों से मैं ये अपील करूँगा, सुरेश शेट्टर साहब को आने में कम से कम अभी 45 मिनट का टाइम है, इसलिए हम लोग खाना खा लेंगे। सुरेश शेट्टर साहब की खाली 1-2 बात सुनेंगे, अगर उससे भी लेट हो रहा है तो फिर खाना खाने के बाद में हम मीटिंग को यहीं बर्खास्त करेंगे। मैं अदबन आप लोगों से माफ़ी के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे अब इस वक्त हम लोग खाना खाने का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए खाना खाना है। और एक कि हमको किसी भी हाल में ये इलेक्शन, अगर हमारे बच्चे भी देखना है कि इलेक्शन किसको बोलते हैं, फिर 2026 के बाद इलेक्शन होना है तो कांग्रेस पार्टी को वोट डालना है। क्यों बीजेपी ये चाह रही कि अब के बार 400 पार अम्बेडकर साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाए
वो अम्बेडकर साहब बनाने से आज बीसी को हो, ओसी को हो, किसी को भी जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आरएसएस और बीजेपी ये चाहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है उसको निस्ते नाबूद कर दे और हम मनसूखी यानी कि भारत में हिंदू राष्ट्र बनाए। ये तो असंभव है, ये मोदी जी को भी मालूम है, लेकिन हिंदू राष्ट्र कौन कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं? भारत में गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू राष्ट्र ही है। इसलिए मैं आप लोगों से फिर से एक बार अपील करूंगा कि विजुअल रेड्डी अन्ना जैसा हमको बताए कि नफरत की दुकान बंद करेंगे, वाकई विजुअल रेड्डी अन्ना साहब कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और हाथ को ही ओढ़ डालेंगे। हम ही नहीं बल्कि हमारे अड़ोस पड़ोस को जो आप लोगों को पाम्पलेट दिया गया है, जाते वक्त फिर आप लोग पाम्पलेट स्टिकर लीजिए, आजू बाजू गली में लगाइए। उस तरीके से हमको 13 तारीख के दिन मुलाका करना है। और विजुअल रेड्डी साहब कि हम मालूम है कि 13 तारीख के इलेक्शन होने के बाद में हम जून के महीने में जैसा भारत नगर वाले विजुअल रेड्डी साहब भी हमारे साथ में रहेंगे, क्योंकि एक न्यू भारत नगर 2 हम डाल रहे हैं। इसलिए हम विजुअल रेड्डी साहब को भी इजाज़त देंगे। हम तमाम लोग पहले लेडीज़ खाने की तरफ जाके खाना खा लीजिए आप लोग।